All the dynamics going in and around us are directly or indirectly an outcome of the human psychology. The youth understands it, and that's why, while the number of students pursuing psychology as a career was only a few thousands in the 1990s, today the number stands in millions. Today I will be having a major leap on my channel. आज मेरे चैनल पे कोई भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड डिस्कशन नहीं होने वाला है. आज जो गेस्ट है हमारे साथ वो ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर से नहीं है, एंड आज हमारे चैनल पे पहली बार कोई फीमेल गेस्ट आ रही है. सो लेट मी वेलकम साइको दीदी और सानिका सुराना, जो कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से मास्टर्स कर रही है अप्लाइड साइकोलॉजी में. She is a student at the Dexterity School of Leadership and Entrepreneurship. She has cleared CAT and has got calls from 9 IIMs. She has a YouTube channel called Psycho Didi, where she has several psychology aspirants, and there are many more feathers in her cap, so which we will figure out soon. So let me add her to the screen. Hi, Sanika. Hello. Hello. Or I should say Psycho Didi. Yeah, how are How you are you? doing? I'm fine. How are you? Yeah, I'm fine. Great. Yeah, so Sanika, what was the psychology behind choosing psychology as a career? Uh, Very creative question. So what happened is there was a lot of mental health issues going on in my family, in my mom's side also, and my dad's side also, which I did not have any idea about. But I was also very irritated with the kind of behavior they were having, and I couldn't explain it through my own logical reasoning. So I really wanted to know what was happening to them and how could I help them better? How could I help myself better cope with whatever was happening to them? So that was one reason. Another reason was मुझे तो हीरोइन बनना था 11th 12th में honestly, but I wanted to come to Mumbai and join Bollywood and all that full dreams I had, but then reality struck, and I realized that what I really like is expressing myself, and also eventually making a space for people to express themselves. I would Mhm. unusually attract people who would want to come and just talk to me. और ये 11th 12th से ही होने लग गया था कि people would feel safe in talking. And eventually I felt कि यार ये करना अच्छा लगता है, बस सुनना और एक ऐसा जगह बनाना जहाँ मैं बस सुन लूँ उन लोगों का और कोई एडवाइस ना दूँ, ये करना अच्छा लगता है मुझे. So then I started seeing what were the different things that I could do with this skill set that I want to take further, and achieving the knowledge that will help me suffice my curiosity about मेरे parents के families को हुआ क्या है exactly. So that led me towards psychology in my bachelor's, and eventually then I fell in love with the subject. Yeah, that is actually a quite noble region. And Yeah. आजकल सुनने के लिए actually कोई नहीं मिलता है. So Hmm. we will discuss about it as we move on. Yeah, So yeah. can you share the timeline of your career path, like how you started with the psychology in bachelor's and how you moved on to masters, all the preparation and Okay, stuff? Yeah. sure. So what happened is I took science in 11th because I had good marks in 10th. And I need not mention that cliche again. But Yeah, definitely. yeah. बट मुझे 11th में मैंने बताया वैसे मुझे एक्टिंग करनी थी. आई वांटेड टू बिकम अ बॉलीवुड एक्ट्रेस. तो फुल 11th स्टैंडर्ड आई डिड थिएटर प्ले, एक्टिंग, लॉट ऑफ एक्टिंग, डायरेक्शन, सम राइटिंग. आई डिड अ लॉट ऑफ दैट, एंड आई रियलाइज कि साइंस तो नहीं हो पाएगा. साइंस मतलब 97% से मेरा परसेंट 80 पे आ गया. और बहुत बड़ा शौक होता है टॉपर को जब ऐसा होता है तो वैसे 80% हो सकता है खुद का ऐसे मार्क्स देख के ही बहुत शौक लग जाता है. तो आई डिसाइडेड कि नहीं नहीं मार्क्स तो नीचे नहीं आने चाहिए. आर्ट्स बहुत इजी होता है,
आर्ट्स ले लेते हैं, फिर आर्ट्स में 2 घंटा ही पढ़ना पड़ेगा, उसके अलावा सब एक्टिंग कर सकेंगे. So I took arts in 12th, and my supervisor was very nice. She was like, "Arts, ठीक है, you want to switch, you can switch, but you have to get good marks." So I took arts in 12th, and I was in Ferguson College. Everyone knew me in Ferguson College, so my supervisor allowed it. I took arts in 12th, and I started attending a few lectures to see कि exactly इधर होता क्या है, because I was new to art. And I fell in love with those lectures. मतलब मैंने philosophy, logic, psychology, sociology, German और English ऐसा लिया था, और मुझे इतना मजा आने लगा कि मैं पढ़ाई करने लगी. मैंने एक्टिंग वैक्टिंग सब छोड़ दी. मैं पढ़ाई करने लग गई. और मैंने पूरे 12th स्टैंडर्ड बहुत बहुत पढ़ाई की. हाँ, मुझे रियलाइज हुआ कि यार पढ़ाई अगर खुद पे ले लेते हैं तो हर जगह पे पढ़ाई होती है. बस हाँ, 12th में फिर मैंने बहुत पढ़ाई की. एंड पढ़ाई करते करते देन आई ऑल्सो डेवलप्ड इंटरेस्ट इन साइकोलॉजी. तो आई वांटेड टू टेक साइकोलॉजी फॉर फर्स्ट ईयर. फर्स्ट ईयर में आई वांटेड टू गो टू क्राइस्ट यूनिवर्सिटी. But then what happened is I applied to Christ University, and Christ University में 2 बार सिलेक्शन, जैसे JEE 2 बार होती है, वैसे क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के एग्जाम भी उस साल में 2 बार होती है, 2 बार सिलेक्शन होते हैं. तो I applied for the first round. I didn't get in. But I lived in Bangalore for that time, for 7 days when I was waiting for the results. And I was living near Christ only. So I was continuously every day going out in Bangalore, seeing how students behave there, what all rules and regulations are a part of Christ. And I did apply for the second round because मेरे से ईगो पे आ गया था कि मैं कैसे, मेरा सिलेक्शन कैसे हो नहीं पाया. But I was very clear that अगर हो भी गया तो I didn't want to go to Christ because there were many things कि लड़कियों के लिए बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस थे. हॉस्टल का इन टाइम तुम एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड, कुर्ता ही कंपलसरी पहनना है विद द चुन्नी. हाउ मच यू कैन टॉक टू बॉयज, हाउ मच यू कैन नॉट. तो मुझे ऐसा लगता है कि फ्रॉम द प्लेस दैट आई हैव कम, फर्ग्यूसन कॉलेज, वो इतना लिबरल है इन द एनवायरमेंट दैट इट इज कम्प्लीटली, यू आर एन अडल्ट, यू फिगर थिंग्स आउट फॉर योर सेल्फ. मतलब ऐसे स्कूल जैसा एनवायरमेंट नहीं है ना. आई रियली वॉन्टेड दैट एनवायरमेंट. तो मैंने डिसाइड कर लिया था एंड आई गेव दैट एग्जाम द सेकेंड टाइम. आई गॉट इन एंड आई देन डिडंट टेक इट. तो बस मैंने ईगो सेटिस्फाई करने के लिए एग्जाम दे दिया. अच्छा. But then I stayed in Ferguson College because मुझे वो environment वैसा ही चाहिए था. And I did my bachelor's. Bachelor's FP में भी ऐसा होता है कि तुम्हें फर्स्ट ईयर में बेसिक बीए करने को मिलता है. फर्स्ट ईयर के मेरिट के बेसिस पे सेकंड ईयर में स्पेशलाइजेशन मिलता है, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, जो भी चाहिए वो. तो साइकोलॉजी वाज लाइक द मोस्ट कवेटेड subject. Everyone wanted it. I had to be in top 30, top 40 out of the 400 people batch to get psychology. So that happened. So once like I got psychology major, फिर मैंने decide कर लिया था कि आगे psych में ही करना है, because then it is a commitment you are making to yourself. And in हाँ. this period, in the bachelor's degree, I also went out to reach out to organizations जो psychology interns को hire करे. First year में I did a lot of social media marketing work, content development work, and I realized कि ये psychology के students का काम नहीं है. This is good work to learn marketing, but eventually you have to get into something which will help you as a professional when you are done with your masters. And Correct. also you have to reach a point, a skill level where you are confident enough to ask for money from any organization that you are working in, even as an intern. तो if psychology students are watching this, उनको बहुत ऐसे फील होगा कि इंटर्नशिप में पैसे ही नहीं मिलते. इनफैक्ट कभी कभी पैसे देने पड़ते हैं, और ऐसे ही होते हैं हाँ. इंजीनियर के स्टूडेंट्स जो मेंटल हेल्थ का स्टार्टअप बनाते हैं और फ्री में इंटर्न साइकोलॉजी के उनसे काम करवा देते हैं. मैं तुम्हें कुछ नहीं कहना ओके. चाहती, बट हाँ हाँ. यूजुअली ऐसा ऐसा ट्रेंड होता है. तो हाँ. मतलब अगर सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ यार हमारा स्किल लेवल इतना है नहीं, हम फ्री में काम कर लेंगे, तो फिर कभी कोई इंटर्नशिप के लिए पैसा देगा ही नहीं. क्यों देंगे? मतलब इट इज फ्री लेबर दैट दे आर गेटिंग. सो आई मेड इट अ करेक्ट. पॉइंट दैट आई बिल्ड माई स्किल टू सच अ लेवल. फिर मैंने SPSS सीखा,
मैंने एडवांस एक्सेल सीखा, मैंने कंटेंट राइटिंग, साइकोलॉजी में कंटेंट राइटिंग अच्छे से सीखा, मैंने मेरा प्रोफाइल ढंग से बनाया, फिर केस हिस्ट्री टेकिंग, ग्रुप फैसिलिटेशन, ये सब चीजें जो एक साइकोलॉजी स्टूडेंट होने के लिए एकदम टॉप स्किल्स है, वो मैंने मेरी बहुत अच्छी पॉलिश कर ली। तो सेकेंड ईयर में व्हेन आई वेंट आउट टू सीक इंटर्नशिप्स, I could land internships where I got paid. And they were also roles where I could contribute more as a psychology student and less as a marketing student. Because I am not a marketing student. तो ये बहुत हुआ. तो second year, third year, this got continued. Third year में I also did a research on couples conflict and how conflict in couples is कोरिलेटेड विथ एज, कौन से एज में कौन किस तरह कितनी इमेच्योरिटी से या कितने मेच्योरिटी से कॉन्फ्लिक्ट रिसॉल्व करता है, और एज का कुछ लेना देना भी है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन से कि कोई और चीज है, ये सब चीजें मैंने एक्सप्लोर की थी। तो काफी हैपनिंग था बैचलर्स तो, बस सेकेंड ईयर वेंट इन पैंडमिक, फर्स्ट एंड थर्ड ईयर फुल वी गॉट ऑन ऑफलाइन, थर्ड ईयर का थोड़ा स्टार्टिंग, बट आवर कॉलेज वाज द फर्स्ट कॉलेज टू रीओपन after pandemic, so full third year we got offline and I'm very lucky about that. Third year I also decided ki um, when you are a student who has always been topper in school and when you decide to take arts, sometimes you have an inferiority complex within you because society shows it like that. Society says कि मतलब तुमने तुम्हें कुछ कमी होगी इसलिए तुमने आर्ट्स लिया, ऐसे एक, तो अगर तुम्हें बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है टू कीप दैट इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अवे, और फिर भी मन में कुछ रह जाता है, तो आई हैड डिसाइडेड कि मैं जितने एंट्रेंस एग्जाम दे सकती हूँ ना उतने सब देने हैं, जस्ट टू फील that I am not inferior to anyone, or any BA student in that matter is not inferior to anyone. So I was saying that I had decided कि third year में I'd give all the entrance exams that are there, that any student is eligible for, and I am going to try to crack all of them. I might not be able to prepare so well for all of them. I might not be able to give time, so I couldn't give time for CAT. But I'm going to try to crack all of them. I'm going to attempt them with the best of my concentration. That was my aim because I wanted to get over that fear of giving entrance exam. Matlab, I didn't attempt JEE NEET. I didn't get into Christ in the first attempt. So I had this एक ये कि एंट्रेंस एग्जाम पार नहीं हो पाएगी, बड़ी एंट्रेंस एग्जाम कभी पार नहीं हो पाएगी, तो आई वांटेड टू गेट ओवर इट, तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि ऐसा करना है, एंड आई डिड, आई वर्कड रियली हार्ड, रोज मैंने 6-6 घंटा पढ़ाई की, but I also made sure that I watched movies and went out with people and took a break whenever I wanted to. And then I almost cleared all entrance exams that I had prepared for. Now I am in TISS, and I think the course, the degree is so underhyped. Matlab, I am really going to try this year and the next year to talk about everything that the course in TISS has to offer. मुझे ऐसा लगता है कि पूरे इंडिया के सारे मास्टर्स के कॉलेजेस के कोर्सेस ये कोर्स को कॉपी करके बनने चाहिए, बट या आई एम रियली हैप्पी विथ व्हाट आई एम स्टडीइंग। या डेफिनेटली, एंड आप लिंक्डइन पे काफी एक्टिव भी हैं इस बारे में बताते हुए। या तो सानिका, सपोज एक 12th का स्टूडेंट है, 12th कंप्लीट हुई है जस्ट, एंड ही और शी वांट्स टू परस्यू साइकोलॉजी, so what kind of roadmap would you like to give him or her? First, so I think that a lot of studying psychology and getting into the career of psychology starts with self. So one, so I would obviously ask that person to work a lot on themselves, like introspect a lot on what my limitations are, what my strengths are, and what are the things that I need to improve upon. And not only career wise कि मुझे time management अच्छा करना है या मुझे ये अच्छा करना है, इनसिक्योरिटी क्या है, दोस्त मिलते हैं तो अकेला लगता है क्या, मतलब दोस्तों के साथ रहते हुए भी अकेला लगता है क्या, कि
दोस्त नहीं होते हैं यूजुअली, मतलब ऐसे बहुत बड़ा ग्रुप होता है बट कहने को दोस्त नहीं होते हैं। या फिर पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप कैसा है, और पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप बुरा उनके वजह से है, पेरेंट्स की वजह से है कि तुम्हारी भी कुछ है कंट्रीब्यूशन वो रिलेशनशिप खराब करने में। तो ये सब जो हार्ड हिटिंग चीजें होती है जिसके बारे में हम ऐसे हाँ देखेंगे बाद में देखेंगे, अब भी करियर पे फोकस करना, तो ये जो चीजें जिस पे फोकस नहीं करते, ये चीजें खुद के सामने खोलना और खुद को सच बताना ये सब चीजों के बारे में, ये बहुत नेसेसरी है। क्योंकि जब हम खुद को ये सब इमोशनल चीजों के बारे में सच बता सकते हैं, और मतलब हम लोगों के सामने तो एक फसाड मेंटेन करते ही है, पर मुझे इवेंचुअली लगता है हम खुद के सामने भी फसाड मेंटेन करने लग जाते हैं कि नहीं नहीं, आई तो डोंट केयर, आई एम वेरी सॉर्टेड, एंड ऑल द डिस्टॉर्शन दैट इज गोइंग ऑन इज इन माय करियर लाइफ व्हिच आई हैव टू टेक केयर ऑफ, बाकी तो सब बहुत सॉर्ट हो चुका है। तो ये खोलना वापस, और उसको एक एक करके सच में देखना कि क्या सॉर्टेड है क्या सॉर्टेड नहीं है, किस पे काम करने की जरूरत है, ये सब 12th के बच्चों ने करना बहुत नेसेसरी है। एक तो उनकी लाइफ आगे बहुत सॉर्ट हो जाएगी, अगर साइकोलॉजी लिया नहीं लिया हम्म, फिर भी ये हो जाएगा। एंड सेकेंड, हाँ हाँ हाँ। you will really realize कि the work that you have done on yourself, do you want to help other people do the same work for themselves? You become your first patient, you become your first client, and see, explore and see if you can help yourself become a better person, a more fulfilled person. So this is very important. Career wise, like academics wise, obviously take psychology in 11th 12th, it will help you with your CUET UG. CUET UG नाम का एक अभी joint entrance exam होता है for all UG colleges and universities in India, which give master bachelor's admission in universities. So psychology हम्म, in 11th 12th will help them with that. एंड 12th के बोर्ड का अच्छा प्रिपरेशन करना, क्योंकि 12th का फिर पूरा सिलेबस एक बार ध्यान में आ जाता है, और एक बार बोर्ड खत्म हो जाए तो फिर अगले 2 महीने 11th के सिलेबस पे थोड़ा फोकस करना, और सीयूईटी यूजी के पेपर्स बार बार 2 3 तो मॉक पेपर देकर फिर पेपर अटेम्प्ट करना। दिस विल प्रोबेबली हेल्प देम गेट अ गुड एआईआर एंड गेट इनटू अ गुड यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस। अच्छा। सो अगर किसी का ट्वेल्थ में लाइक आर्ट्स या साइकोलॉजी बैकग्राउंड नहीं है, तो तो क्या वो साइकोलॉजी आगे परस्यू कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? उन्हें शायद अलग से 11th 12th का सीबीएसई का बुक लेकर पढ़ना पड़ेगा। मतलब बिकॉज द सिलेबस फॉर डूइंग बीए साइकोलॉजी फॉर सीयूईटी यूजी विल बी साइकोलॉजी, 75 मार्क्स विल बी फॉर साइकोलॉजी। तो एक अलग से 3 4 महीने निकालने पड़ेंगे, और 11th 12th का सीबीएसई का एनसीईआरटी पूरा साइकोलॉजी का छानना पड़ेगा, कम से कम 2 3 बार तो पढ़ना पड़ेगा, और एमसीक्यू टाइप प्रैक्टिस, और खुद को टाइम करना, मॉक टेस्ट देना, वापस चेक करना, वापस मॉक टेस्ट देना, चेक करना, और खुद को पॉलिश करते जाना इन द नॉलेज दैट यू आर गेटिंग, एंड आई थिंक दैट विल मतलब यार एंट्रेंस एग्जाम के लिए अच्छा कैसे प्रिपेयर करना है, ये तो ये बताने के लिए बायजूस पे या अनअकैडमी पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे सीयूईटी के। तो that will be a more हाँ detailed version of how you can crack CUET UG very nicely. But in general पढ़ाई करनी पड़ेगी, और consistent पढ़ाई करनी पड़ेगी, ये यस। necessary। हाँ, और एक चीज ये होती है कि ये तो हो गया कि जिसका ट्वेल्थ में नहीं था। अगर कोई बैचलर्स में साइकोलॉजी नहीं पढ़ा है, जैसे मैंने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है, मैंने इंजीनियरिंग मतलब कर रहा हूँ, सो कैन आई परस्यू मास्टर्स इन साइकोलॉजी? Hmm. You can pursue masters in psychology from Open University. There are a few universities still, Vishwakarma, VIT करके एक पुणे में है, which give a masters in psychology even if you don't have a bachelor's in psychology. But your placement and your in general job prospects become very low. मतलब you have to go out of your way and work like 13 14 hours every day in your masters to really make sure that you get placed, और यू गेट अ जॉब एक्सटर्नली। क्योंकि जो बैचलर्स करके आए होते हैं अभी इन टिस ऑल्सो, देर इज नो वन हु हैज नॉट डन अ बैचलर्स इन साइकोलॉजी doing their masters, because they didn't take anyone who had not done their bachelor.
या आई गेस एक्चुअली मैंने उसमें उनका क्राइटेरिया देखा था, उसमें शायद ये And क्राइटेरिया था. so, matlab, you have to have minimum three papers in psychology. Then only you get to apply for TISS. And that is the case for everyone. Like CREST, mein also you need to have a honors or majors or something in psychology. Then only you get to apply. A lot of good colleges, like prestigious colleges in India, Delhi University, Christ University, Ferguson College, Symbiosis, Tata Institute of Social Science, Manipal University, Xavier, national that NFSU, National Forensic Sciences University. All these colleges, they keep it mandatory that you have a bachelor's in psychology. But if you are interested in general, to understand more about psychology, then you can do masters from Open University or from VIT, or there might be many colleges in every city which give masters in psychology no matter what. ओके, सो लेकिन ये मास्टर्स के लिए हर इंस्टीट्यूट का अपना एक अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है, राइट? ऐसे कॉमन कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता. अभी नेक्स्ट ईयर से दिस ईयर ओनली CUET PG has also started. Last year CUET UG started. This year CUET PG started. CUET PG में सब इकट्ठा हो गए. Next year तो I am really thinking that next year almost 120 colleges and universities will take part in CUET PG. And CUET PG के स्कोर के बेसिस पे, रैंक के बेसिस पे और तुम्हारे प्रेफरेंस के बेसिस पे तुम्हें कॉलेज. ओके, सो ये सोल क्राइटेरिया होगा. हाँ. And obviously you have to have a bachelor's in psychology. Matlab, if things get regulated, then it will be even more tougher to get a master's in psychology if you don't have a bachelor's. ओके ओके, सो लाइक मास्टर्स में जो टर्मिनोलॉजी होती है वो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल होगी रिलेटेड टू साइकोलॉजी. सो दैट वे समवन हु इज हम्म, नॉट फ्रॉम साइकोलॉजी बैकग्राउंड इसको बहुत मुश्किल हो सकती है. बराबर. ओके, सो अभी लेट अस हैव सम opinionated discussion, like Okay. anxiety, stress, frustration, all of these things are common nowadays. Everyday in news ऐसे Hmm. हम लोग को सुनने मिलता है. So what is your take on it as a psychologist? Why is the youth more into stress, more frustrated with their lives? One, so I'm not a psychologist, so I'll just give my take on it as a psychology student. ये And soon will be. in 2 years. Yeah, ये लोग फिर सब मेरे पास ही आएंगे. Usually there are a lot of things that a person can do nowadays. पहले there were limited opportunities क्योंकि दुनिया की सारी अपॉर्चुनिटी वो इंसान के लिए अवेलेबल नहीं थी because the remote work culture that we have today was not there back then. People who are workaholics, high achievers, people who want to do a lot, they always have their schedule packed. And still, there are so many things that they can do that they are missing out on. And स्पेशली यंगस्टर्स में कैसे होता है कि मतलब हम जब 19 20 22 ईयर ओल्ड होते हैं तो वी फील दैट वी वांट टू ब्रिज दिस गैप बिटवीन जो हम कर सकते हैं और जितना अवेलेबल है मतलब ये सब करना है पर हम इतना ही कर सक रहे हैं तो देर इज दिस फ्रस्ट्रेशन इन बिटवीन ऑफ नॉट बीइंग एबल टू डू एवरीथिंग. पीपल हु आर ऑफ दिस कैटेगरी मुझे लगता है कि फ्रस्ट्रेशन यूजुअली इज अबाउट not doing enough. Even if you're doing 100 things, you will feel like you're not doing enough because there will be always another person who is doing something different than you. And the peace might only be in accepting कि मैं limited इंसान हूँ और मेरे पास 24 घंटे हैं और वो 24 घंटे में से मुझे 7 घंटे सोना है, 2 घंटे खाना खाना है, 1 घंटा फ्रेंड्स के साथ स्पेंड करना है. एंड बिकॉज यू फील लाइक यू आर नॉट डूइंग इनफ, you cut down on the time that you give to your friends, you give to your girlfriend or boyfriend,
बहुत सारे ब्रेकअप्स का रीजन जो वर्कोहॉलिक लोग होते हैं उनमें ये होता है कि नहीं यार अभी करियर पे ध्यान देना है, और नहीं ये रिलेशनशिप मुझसे तो नहीं हो पाएगी. So you cut time that you give to your parents. You cut time if you are a sport person, then you cut time on gym, on playing. अगर तुम 10 तक फुटबॉल को जाते थे, तो that you don't do. So this is something that you do in order to compensate to do more. और वो more कभी खत्म ही नहीं होता है because there will always be something that someone is doing better than you. So a lot of stress and frustration comes out of that. Apart from this, अगर तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिल ही नहीं रहा है, अगर सामने कुछ आ ही नहीं रहा है, एंड यू डोंट हैव द सम पीपल माइट जस्ट बी लेजी, some people might really not have the resources that they get the opportunities that they want. So both these people might doubt themselves seriously कि बाकी सब लोग तो इतना सारा कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ लाइफ में, है ना. मतलब मेरे पास एक भी चीज नहीं है जो मैं ऐसे गर्व से बता पा सकती हूँ कि यार मैं ये कर रही हूँ या मैं बहुत बिजी हूँ. तो other people are busy and after looking at their life you might feel like अरे आई एम तो सो फ्री, मैं तो वेली बैठी हूँ, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, ऐसा क्यों है. देन दैट माइट क्रिएट अ सीरियस सेल्फ डाउट and a lack of confidence on your image, and that might lead to a lot of like sadness and sometimes doubting yourself also. तो ये दो चीजें मुझे ऐसा लगता है इन टर्म्स ऑफ करियर हो सकती है. एंड ऑब्वियसली देर देर आर वेरियस अदर रीजंस. पेरेंट्स के साथ अगर बनती नहीं है तो ब्रेकअप हो जाता है, 5 साल डेट कर रहे हो और ब्रेकअप हो जाता है तो अगर किसी मतलब तुम ग्रेजुएट होने वाले हो और तुम्हारा लास्ट ईयर में बैक लग जाता है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत सारा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन ला सकती है. तो ऑब्वियसली वो है, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग आउट अ पैटर्न दैट पीपल माइट रिलेट. ओके, लास्ट वाला सुन के एक्चुअली अभी काफी डर लग रहा है. अभी अभी एग्जाम्स दिए थे सो तो हाँ, तो आजकल ऐसा हो रहा है कि हमारे फ्रेंड्स तो बहुत सारे हैं, काफी लोगों से हम बात करते हैं, हम लोग बाहर जाते हैं, और आपने जैसे बताया था थोड़ी देर पहले कि बहुत बड़ा ग्रुप है लेकिन फिर भी उसमें लोनलीनेस लगता है. तो व्हाट इज द रीजन एग्जैक्टली बिहाइंड दिस? ये लोनलीनेस कैसे दूर हो सकता है? Honestly, it is a journey. मतलब you really have to know yourself a lot in detail to connect well with people. Um, सबसे पहले तो what you can practice for yourself is practice genuineness. तुम जो दिल में हो वो चेहरे पे हो. आई नो कि मतलब कॉरपोरेट दुनिया में ये करना बहुत टफ हो जाता है क्योंकि यू ऑलवेज हैव टू बी डिप्लोमेटिक एंड ऑलवेज हैव टू बी वेरी पोलाइट एंड मेक श्योर दैट नो वन सेंटिमेंट गेट हर्ट. बट कम से या कम नजदीक के लोगों के साथ, मम्मी पापा के साथ, भाई बहन के साथ, दोस्तों के साथ, जो हो अंदर वो बाहर हो, ये प्रैक्टिस करने किया तो you will not have any insecurity about your personality. मतलब you will have a place where you can be completely yourself. ये होना बहुत necessary है. और before having that place in front of people, it is important that you have that place inside yourself. तुम खुद को सच बोलो पहले, ये बहुत नेसेसरी. इफ यू डू समथिंग आउट ऑफ जेलसी, यू शुड नो दैट यू डिड दैट आउट ऑफ जेलसी. यू शुड नॉट रैशनलाइज इट एंड से यार मैंने तो बराबर किया, मैंने जो किया वो मुझे ऐसा नहीं. तो यू शुड नो कि तुमने ये जेलसी की वजह से किया. यू शुड नो कि तुमने कुछ ईगो की वजह से किया. यू शुड नो अगर तुमने चीटिंग की तो तुमने चीटिंग की. तुमने रिलेशनशिप में भी चीट किया तो यू शुड टेल योर सेल्फ द ट्रूथ कि हाँ मैंने किया है ऐसा. फिर उसके बाद वो फैक्ट एक्सेप्ट करने के बाद तुम खुद के साथ क्या बात करते हो वो भी बहुत नेसेसरी है. तुम वो चीज को बराबर ऐसे बनाने का कोशिश करते हो खुद से बात करते करते, या तुम वो एक्सेप्ट करते हो और यार हो गया एक बार मेरे से गलती और वो इस वजह से हुआ, बट मेरे से अगली बार ऐसा नहीं होगा, इसका मैं कोशिश करूंगा या करूंगी.
So this being very honest with yourself is very important. When you are able to create that kind of space for yourself, I think it is easier to connect to people and be honest with them. मतलब एक बार खुद से झूठ बोलना बंद हो जाता है, कुछ लोगों से फिर हम झूठ बोलना बंद कर सकते हैं। और एक बार हम जेन्युइन है, नो मैटर व्हाट, तो लोगों के लिए हम एक स्पेस क्रिएट कर लेते हैं कि यार मैं तो बहुत जेन्युइन हूँ और मेरा सब कुछ है तुम्हारे सामने, मैं जैसा हूँ वैसा, तो यू कैन कम इन हाँ। एंड बी जेन्युइन विथ मी। और जब दो लोग जेन्युइन हो जाते हैं तो फिर कनेक्शन बनना बहुत इजी हो जाता है। वो सब हाँ। पसारा जो है, पसारा इन द सेंस वो सब जो कूड़ा है वो साफ हो जाता है, इंस्टाग्राम के फिल्टर्स बंद हो जाते हैं जो रियल लाइफ में लगे होते हैं, तो वो एक बार खत्म हो गया और दो लोग सच में उनके उनके इमोशंस के साथ, उनके असली थॉट्स के साथ एक दूसरे से अगर बात कर रहे हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर तुम्हारा मुझसे व्यू अलग है और मेरा तुमसे व्यू अलग है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम हम्म। नहीं है क्योंकि मुझे मेरे व्यू के बारे में बहुत सिक्योरिटी। इसलिए तुमने कुछ मुझसे अलग बोल दिया तो मैं ऑफेंड नहीं हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या हूँ। तो ये लेवल ऑफ सिक्योरिटी अगर तुम खुद के लिए बना पाते हो, तो तुम किसी से हम्म। इजीली ऑफेंड भी नहीं होंगे। और तुम अगर लोगों से इजीली ऑफेंड नहीं होते हो तो लोग तुम्हारे पास आकर वो जो बोलना चाहते हैं वो बोल पाएंगे और उन्हें हमेशा डिप्लोमेटिक होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब सेल्फ वर्क इज आई गेस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कनेक्टिंग विथ पीपल। और हम्म। मुझे बहुत ऐसा लगता है कि हम बाहर बहुत देखना चाहते हैं। मतलब यू सेड इन द पास्ट, मतलब 2 मिनट पहले यू सेड कि वी आर बिकमिंग वेरी एम्बिशियस। तो एम्बिशियस होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। द थिंग इज वी आर बिकमिंग एक्सटर्नली वेरी एम्बिशियस, बट इंटरनली हाउ हम्म। मच वी नो आवर सेल्फ। मैं क्या हूँ, मैं मेरा कॉलेज छोड़ के, मेरा यूट्यूब चैनल छोड़ के, मेरा एआईआर छोड़ के मैं हम्म। क्या हूँ, मुझे पता ही नहीं। तो इट इज हम्म। वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक बैक विथ आवर सेल्फ एवरी डे कि मुझे कैसा लग रहा है, मेरा सोच कैसा हो रहा है, बिल्कुल। कैसे चेंज हो रहा है। और वो अवेयरनेस के साथ मुझे ऐसा लगता है कि दोस्ती बनाना बहुत इजी हो जाएगा लोगों को, और रियल जेन्युइन दोस्ती का। दैट इज अ रियली एक्चुअली इंसाइटफुल आंसर, बट मेरा इस पे एक सब क्वेश्चन ये है कि जब हम हम्म। खुद जेन्युइन होते हैं और हम्म। हम लोग का जो सर्कल है वही जेन्युइन नहीं होता, तो क्या ये लोनलीनेस ज्यादा नहीं बढ़ा देगा? um, जब हम जेन्युइन होते हैं और हमारा सर्कल जेन्युइन नहीं होता, ये बोल के हम ऐसा कह रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो भी हमारे साथ हम जैसे बिहेव करे वैसे बिहेव करे। और ये तब तक नहीं होता है जब तक हम अपने तरफ से बहुत नहीं दे देते। और बहुत देना मतलब बहुत प्यार देना वगैरह ये सब नहीं होता है, उनके लिए जगह क्रिएट करना कि उनके वो जो चाहे वो अपने साथ शेयर कर सकते। तो हमने कितनी बार ऐसा जगह क्रिएट किया है उनके लिए। और ये ऐसा भी बोल के नहीं होता है कि यार तेरे को कुछ भी लगा तो कॉल करना, मैं हूँ। ऐसे बोल के जगह क्रिएट नहीं होता है अपने अपने आप, क्योंकि हाँ। उसको विश्वास कैसे होगा कि तुम हो सच में। तुमने बोल दिया बट हाँ। तुम्हारे बिहेवियर से उसको विश्वास कैसे होगा। तो पहले तो हर एक रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टिंग में हम कितना दे सकते हैं उसके बारे में ही सोचना चाहिए। 1 डेढ़ साल फ्रेंडशिप में, रिलेशनशिप्स में, अभी तो इवेंचुअली पेरेंट्स के साथ भी हम कितना उन्हें दे सकते हैं उसके बारे में सोचना चाहिए। एक पॉइंट तो कभी तो आएगा कि हमने 10 बार दिया है, 12 बार दिया है, 20 बार दिया है, तो अपने को जब लग रहा है कुछ, तो सामने वाला सोचेगा कि मेरे यार हर टाइम पे ये बन रहा है, इट इज माई ड्यूटी नाउ टू बी देयर फॉर दैट। एंड वी शुड नेवर थिंक कि ये 20 बार वो बारी आएगा उसके लिए मैं दे रही हूँ या दे रहा हूँ। वो दैट विल टेक आउट द एंटायर मीनिंग आउट ऑफ इट। जस्ट गिव बिकॉज यू लाइक दैट पर्सन, बिकॉज यू वांट कि उस इंसान का अच्छा होना चाहिए। ये इस भावना से ही उसके लिए जो करना है वो करना है। और अगर इवेंचुअली कुछ अपने लिए आता है तो दैट इज जस्ट साइड इफेक्ट। सो बेसिकली हमें बिना कुछ एक्सपेक्टेशंस के हमेशा हमेशा अगर हम गिविंग नेचर के रहें तो हाँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। सो एक्सपेक्टेशंस अनदर थिंग जो कि प्रॉब्लम्स एक्चुअली बढ़ा देता है काफी बराबर। ज्यादा। और मतलब यूजुअली ऐसा होता है, फ्रेंडशिप्स में तो ऐसा होना चाहिए, बट रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है कि एक्सपेक्टेशन नहीं होना और बस देते रहना है, ये बहुत फार फेच्ड चीज है। बहुत एक्सपेक्टेशंस होती है रिलेशनशिप्स में।
और हाँ बहुत इजी नहीं है वो दोनों साइड से फुलफिल करना। तो बहुत नेसेसरी है जिस मोमेंट पे हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कम्युनिकेट करना। अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रोज हमारी पार्टनर हमें कॉल करेगी, तो वो बोलना कि यार मेरे को सच में चाहिए तू मुझे कॉल कर। मतलब अभी दो सिनारियो ले लो। अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम्हारा एग्जाम हो खत्म हो गया, और तुम्हारा एग्जाम होने के बाद यूजुअली तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारे रिलेटिव कोई कॉल करते हैं तुम्हें और पूछते हैं एग्जाम कैसे गए, और तुम एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने भी तुम्हें कॉल करके पूछना चाहिए। बट वो जो लड़की है उसके लाइफ में तो ऐसा हुआ है हमेशा कि उसका एग्जाम होने के बाद किसने कुछ केयर नहीं किया है। उसने एग्जाम दिया है, उसका उसका आई है, उसका उसका गई है। तो वो उसको लगता ही नहीं है कि कॉल वॉल कुछ होता है। ठीक है, अभी उसने अगर कॉल नहीं किया और तुमने मतलब तुमने एक बार ऐसे बोला यार तुमने कॉल नहीं किया, तो उसको वो रजिस्टर नहीं हुआ। और ऐसे 10-12 बार हुआ कि उसने कभी कॉल नहीं किया एग्जाम के बाद, बड़े एग्जाम के बाद। तो तुम गुस्सा हो गए कि यार तुमको इतना मेरे लिए केयर ही नहीं है वगैरह वगैरह, और फिर तुम्हारे में झगड़ा हो गया। फिर वो बोली क्या बच्चों जैसे तुम्हें कॉल की जरूरत पड़ रही है वगैरह, मुझे तो कोई कॉल नहीं करता। और वो उसमें झगड़ा हो गया, वो खत्म हो गया। दूसरा सिनारियो है कि तुम उसको पहले ही बोलो। हाँ, हम्म दूसरा यस सिनेरियो है कि तुम उसको पहले ही बोलो कि मेरी लाइफ में ऐसा होता है यूजुअली कि मेरा बड़ा एग्जाम होता है, तो वो खत्म होने के बाद या वो शुरू होने से पहले मुझे मेरे नजदीक वाले ऑल द बेस्ट बोलने के लिए और एग्जाम कैसे गया वो इंक्वायर करने के लिए कॉल करते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर तुमने मुझे कॉल किया तो उससे मुझे ऐसे अपनापन का फीलिंग ज्यादा आता है। तो ये बोलना ऐसा लगता है कितना इमेच्योर है और ऐसा बोलने की जरूरत है क्या, हाँ बट अगर ऐसा बोला सामने वाले को तो वो क्यों नहीं कॉल हम्म, करेगा, उसको तो याद रहेगा। ऐसे कि यार हाँ मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे बोला था कि उसको एग्जाम के बाद कॉल करना है। तो उसकी आदत नहीं भी रहेगी तो वो तुम्हारे लिए बिना कोई खुद का सोचे वो तुम्हारे लिए कॉल करेगी। तो ये कम्युनिकेशन, क्लियर कट कम्युनिकेशन। अगर मतलब फॉर एग्जाम्पल बहुत हाँ सारे लोग बोलते हैं कि लड़कियों को बहुत अटेंशन लगता है, हम्म बट अगर कोई लड़की कोई गर्लफ्रेंड उसके बॉयफ्रेंड को बोले कि यार अभी मुझे बहुत अकेला लग रहा है, मुझे तेरा थोड़ा अटेंशन चाहिए, प्लीज मेरे पास ध्यान देना। अगर कोई ऐसे पूछती है तो वो क्यों नहीं अटेंशन देगा। वो बस खुद के ईगो के ऊपर आकर खुद को सच में हाँ क्या चाहिए वो सामने वाले को कम्युनिकेट करने की बात होती है, और वो बहुत प्यार से कम्युनिकेट करने की बात होती है, क्योंकि उसको आदत नहीं होती है हमेशा तुमको जो चाहिए वो देने की, क्योंकि वो कुछ और हाँ बचपन मम्मी पापा रिलेटिव से पला बढ़ा है या पली बड़ी है, और वो लड़की कुछ और इसमें से पली बड़ी है। तो हाँ वो दोनों मैच नहीं करेगा। तो जब तक तुम तुम्हारा बैकग्राउंड उसको नहीं बताते और उसका बैकग्राउंड तुम नहीं सुन लेते, तब तक उसके लिए अच्छा फील कराने के लिए करना क्या है, वो एक्सपेक्टेशन मीट कैसे करनी है वो समझ ही नहीं आएगा। और हाँ कम्युनिकेशन मतलब फ्रेंडशिप्स में तो यूजुअली लोग इतना वल्नरेबल होकर खुद का बताएंगे ये मुझे नहीं लगता है, बट अगर ऐसा कम्युनिकेशन हो पाता है हाँ जहाँ पे लोग खुद को मतलब मेरे को क्या जज करेंगे ये साइड में रख के, यार बस मेरा सुन ले 15 मिनट मेरे को बहुत रोना आ रहा है, ऐसा बोल पाते हैं तो आई थिंक हाँ व्हाई विल द अदर पर्सन नॉट गिव देम अटेंशन। यस करेक्ट। सो कम्युनिकेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है रिलेशनशिप में। और हम्म। जहाँ अपने ईगो और वल्नरेबिलिटी को साइड में रख के हमें खुल के कम्युनिकेट करना चाहिए। सो ये बहुत ज़रूरी है। ईगो को साइड में तो रख के वल्नरेबिलिटी सामने लाना। हाँ हाँ करेक्ट। सो सानिका, डिप्रेशन अगेन काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। हम लोग डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि डिप्रेशन क्या है और लाइक नॉर्मल एवरीडे स्ट्रेस क्या है। हम अगर किसी को जाके बोलना चाहें कि डिप्रेस्ड फील हो रहा है तो भी लोग यूजुअली भी बोलते, इवन पेरेंट्स भी बोलते हैं इट्स नथिंग, ऐसा कुछ नहीं होता, जस्ट गो आउट एंड चिल, ऐसा कुछ। सो ट्रू डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन का एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, जैसे ट्यूबरकुलोसिस का, जैसे कैंसर का डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है, वैसे डिप्रेशन का डायग्नोस्टिक हम्म क्राइटेरिया है। 2 हफ्ते से ज्यादा उसके सिम्टम्स दिखने चाहिए तब जाके डिप्रेशन डिप्रेशन बोल के डायग्नोस होता है। डिप्रेशन में माइल्ड मॉडरेट सीवियर डिप्रेशन ऐसे में कैटेगराइज होता है।
और उसके भी अलग अलग चीजें कि ऐसे डिप्रेसिव एपिसोड 2-3 हफ्ते के लिए आ सकता है, फिर वापस खत्म हो सकता है, नॉर्मल लग सकता है, फिर नेक्स्ट मंथ वापस आ सकता है वापस। तो ये ऐसे एक साइकिल में भी चलता रह सकता है। तो ऐसे काफी चीजें हैं, मतलब डिप्रेशन डिसऑर्डर्स के स्पेक्ट्रम पे बहुत चीजें फॉल करती हैं। तो ट्रू डिप्रेशन तो वो है जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट डायग्नोस कर पाए। और अगर वो ऐसा डायग्नोस कर पाते हैं तो मतलब थोड़ा सिवियर ऐसे एक दिन हमें सैड लगता है और ऐसा लगता है कुछ नहीं करना है, बस बेड में ही रहना है। वैसा अगर साल भर लगता है और ऐसा लगता है कि लाइफ का कोई अर्थ ही नहीं है, और ऐसा मतलब बहुत टाइम तक लगता है, और ऐसे रोज जीना ऐसे जान पर आता है, जीना ही जान पर आता है, तो प्रोबेबली वो डिप्रेशन के कैटेगरी में बैठ सकता है। सैडनेस किसी एक चीज के वजह से होती है, पर बिना कोई रीजन अगर कोई सैडनेस होता है और वो प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए होता है और इतना सिवियर होता है कि मतलब जीने का इच्छा नहीं करता है, तो वो प्रोबेबली डिप्रेशन के कैटेगरी में है। तो फिर हम, जैसे किसी को अगर डिप्रेशन है या ऐसा उसको फील हो रहा है, तो वो इमीडिएटली क्या करना चाहिए, जब उसके पेरेंट्स और फ्रेंड्स यूजुअली नहीं इमीडिएटली सुन रहे? एक अभी तो बहुत इजी है, अभी प्रैक्टो एमफाइन ऐसे एप्स है जिसमें यू कैन जस्ट बुक एन अपॉइंटमेंट विद हम्म, साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट फॉर 250 रुपीज, 250 300। हम्म, तो just save up that much money, book an appointment, and वो डायग्नोसिस करवा लेना, केस हिस्ट्री देना, डायग्नोसिस करवा लेना, ये बहुत अच्छी चीज है। एंड इवेंचुअली मतलब बहुत सारे हाँ, साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो प्रो बोनो थेरेपी या स्टूडेंट्स के लिए डिस्काउंटेड थेरेपी ऐसा करते हैं। तो वो एप्स पे ही मिल जाएगा, और वो उसके लिए एनरोल करना, या अगर बहुत सीवियर है तो मेडिकल ट्रीटमेंट सीख करना, ये दिस इज समथिंग दैट कॉलेज स्टूडेंट्स एटलीस्ट कैन स्टार्ट डूइंग। You need not really tell your parents or friends that you want help or you want to go to a psychologist. अगर तुमको लगता हम्म, है कि अभी भी मैं बता नहीं सकती हूँ बाहर कि मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम है हाँ, क्योंकि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, तो तुम्हारा तुम्हारा भी तुम्हारे फोन पे ही बुक कर सकते हो और तुम्हारा तुम्हारा जा सकते अच्छा। सो बट हम लोग इसका कोर वो क्या समझे, रीजन क्या समझे, क्योंकि ताकि लोगों को जाना ही नहीं पड़े इस डायरेक्शन में। सो द क्वेश्चन सम्स अप टू हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ मेंटल। क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि अरे डिप्रेशन, डिप्रेसिव, वो सब? ऐसे कैसे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगर डेंगू हो जाता है और वो बहुत ज्यादा हो हाँ। जाता है, तो मतलब उसका प्रिवेंटिव तो ये रहता है कि ओडोमॉस लगा लो। बट अगर डेंगू हो जाता है तो फिर तो जाना ही पड़ेगा ना डॉक्टर के पास। अ, तो वैसे ही है कि मतलब इन जनरल लाइफ खाली नहीं लगनी चाहिए, उसके लिए लाइफ को मीनिंग देना, अम, खुद हम्म, को अच्छे से जान के लेना, एक अपने साथ जेन्युइन होना, लोगों के साथ जेन्युइन होना, बहुत लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन होना, एक फीलिंग हम्म, सेंस ऑफ अचीवमेंट होना लाइफ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन जनरल मेंटल हेल्थ के इश्यूज को प्रिवेंटिव केयर की तरह हो सकती है ये। बट अगर कुछ ऐसा होता है और ऐसा लगता है कि नहीं हैंडल हो रहा है, तो खुद से डील करना ये सब चीजों के साथ कैन बी मोर हार्मफुल देन बेनिफिशियल। क्योंकि खुद से डील करना कैन बी लाइक गिविंग योरसेल्फ पैरासिटामोल। एक महीने से बुखार आ रहा है और रोज तुम पैरासिटामोल लेकर सो रहे हो, दिस कैन बी इक्विवेलेंट टू दैट। तो इट इज मतलब अगर बुखार खत्म करना है तो इट कैन बी मोर बेनिफिशियल दैट यू सीक अ अपॉइंटमेंट एंड जस्ट गेट डन विथ इट वंस एंड फॉर ऑल। Yeah, that actually makes sense. That was a really good analogy to explain this. Yeah. So with this, I think we are moving to the end of the discussion. And you tell us about your channel, Psycho Didi. Is doing some great work. Yeah, thank you. So what I'm doing
doing on Psycho Didi is trying to build excellence in students, especially in students of psychology. Um, I think that if we are expecting that we get the respect and the job opportunities equivalent to a MBBS or a engineering student, then that level of excellence is also expected out of us. And that level of excellence comes out of building skill. मतलब अभी गवर्नमेंट बीए का पूरा कोर्स बहुत ज्यादा टफ बनाना ये सब करने में बहुत टाइम लगेगा. But what we can do from our side is build really market important skills. Once skills are built, you gain confidence to ask money for the internships that you do. Build a name on LinkedIn. Eventually, get in contact with people who can give you internships like that. And even if not, then get in contact with people in general. And then prepare for entrance exams so seriously that you really get into premier institutes that teach psychology in India. And then eventually take that master's degree up seriously and work in a setup that you would want to really work in and get paid for that. So this is the model that I see myself working towards, and I see myself helping people in psychology in all these verticals through my channel. Obviously, सब YouTube के मदद से तो नहीं हो पाएगा. कुछ कुछ खुद से करना पड़ेगा, Mhm. कुछ कुछ लोगों को लाकर करना पड़ेगा. But YouTube at least is starting how preparation of entrance exam can happen along with final year degree, and how to really make yourself such an excellent student that you are at par with everyone who is there in premier institutes. So this is basically what I'm focusing on. I'm Mhm. really happy that I could really contribute to a lot of people for clearing TISSNet and interview and getting here. And not just TISSNet, like I also helped a lot of people get into Christ, NFSU. I'm helping people get into Delhi University. So all great colleges that you can do your masters in psychology in. And I'm really hoping that next batch Mhm. also, like the juniors that will come in, next batch also, I can help a lot to the best of my capacity, at least in this field, to get into premier institutes, because that is like one stepping stone to good education and eventually a good professional life. So that is it. I am looking Yeah. at skill building also. Like through my channel, eventually I'll help people with making a good LinkedIn profile, CV building, interview skills, and then eventually psychology student specific skills. So I'm looking at that also, and eventually that can also come up on my channel. And the other verticals that I mentioned, I'll tie up with different people and make sure that there is a all-round growth of students as a psychology student. Mhm. All they need is a will to do so well that they will never feel inferior to anyone. Yes, yes, yes. I did saw some of your videos, and they were really, they were really amazing. And Mhm. uh, yeah, so I would request all the viewers to go check out the channel Psycho Didi. I will add the link in the description. Thank you. So that will be great. Yeah. Yeah. So Sanika, any final tips or learnings you would like to share in one of few lines? The last comment that I really want to make, I think the flow of podcast has been such that I have talked a lot about looking into yourself. Mhm. And I want to expand upon that and say, okay, um, there might be a lot of opportunities where people will give you a stage to look out and see what is there and grab the world and get exposure and all that. But in that same intensity, it is very Yeah. necessary to look inside and get to know about the thoughts, feelings, emotions that you are dealing with at every moment. That extreme awareness about yourself will make conquering the world much easier and also will tell you your limitations on your face. Um, and that will not be a sad thing. That will exactly tell you what is the highest potential you can achieve in terms of getting to know yourself also and in terms of
achieving things that are out there in the world also. And it will give you better clarity about Mhm. how you can go on to achieve them. So yeah, just happy being more aware about yourself and um, all the best. Yeah, yeah, that was very well said, Sanika, and the video was amazing. I guess the discussion was really amazing. And I think the core of the entire podcast will be we have to be more aware about ourselves. We have to accept ourselves as we are. Some people will be Hmm. the prime minister, some people will be the president. You can also be the prime minister and president, but you have to accept if you can't be, then you can't be. Just you have to accept yourself. You don't have to force yourself like, no, I am not being able to be like that or something. Yeah. You might be good in some other field. So just like Sanika did, she was from the science background. She took the decision to switch her field as soon as she realized that this is the right time that I have interest in something other. So you have to be strong enough to take bold decisions like that. And yeah, then I guess we will be in a much better society. Yeah. So with this, Thank you. let's Thank you so end much for the. having me. Yeah, thank you so much for accepting my invite and giving me your time. So, No problem. yeah, so and at the end मैं यही बोलूँगा जस्ट लाइक हर यूट्यूबर बोलता है कि वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साइको दीदी चैनल को भी जरूर चेकआउट करना या Yeah. बाय बाय चलो. Bye bye.